Hi everyone, good evening, namaskar, sat sri akal, salam alaikum. I hope you're all well, fine, healthy, safe and are sitting at home, not going out. That is a safe place, safe thing to do. Hi everyone, good to have you guys. Hi Swada, hi Spectre, hi Maths, hi Priyabata, hi Mohammed Uzair, hi Arandas, how are you? Good to have each and every one of you guys. So I welcome you all to this session guys. थोड़ी सी एक दो छोटी छोटी बातें करनी थी बिकॉज मुझे पता है कि व्हाट इज प्री आरएमओ सब लोगों को पता है एंड जिन लोगों को नहीं पता मैं क्विकली बहुत ज़्यादा बता दूंगा. देयर आर लॉट ऑफ डाउट्स विच आर अकरिंग इन माई नॉर्मल रेगुलर लेक्चर्स. बहुत सारे बच्चे प्री आरएमओ के बारे में पूछ रहे थे, प्री आरएमओ की इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछ रहे थे और एक और नया अनाउंसमेंट है हमारी तरफ से जो हम लॉन्च कर रहे हैं बहुत जल्दी इसी संडे से, कमिंग संडे से. सो उसके बारे में मुझे बताना. तो इट विल बी अ वेरी क्विक सेशन, मैक्सिमम 30 भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ. वेरी वेरी क्विकली विल बी रैपिंग इट अप. सो इट इज़ जस्ट अ इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेशन एंड ऑल्सो एट द एंड लास्ट में जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं रिलेटेड टू प्री आरएमओ प्रिपरेशन और आरएमओ प्रिपरेशन फॉर दैट मैटर एंड whatever help do you want from us, just let me know. I'll open the chat after I give my information, after I deliver my part. Done deal. बताओ मुझे फटाफट से. हाय मिश्रा जी, हाय अरनगिरी, हाउ आर यू? सुपर. तो बच्चों जो भी आज कुछ नहीं पढ़ेंगे भाई, आज फ्री सेशन है, वीकेंड इज अबाउट टू कम. आज वैसे तो इट वाज सपोज टू बी अ गुड डे. हम सब लोग वेट कर रहे थे कि यार इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड में वो फास्ट बॉलिंग देखते हैं एंड स्विंग देखते हैं एंड सो ऑन, बट नॉट टू बी. बट आई थिंक कल तक रेज्यूम हो जाएगा जल्दी. क्या कहते हो बच्चों, क्या कहते हो? Hi Preet, Preet is also here. Good to have you, bache. Good to have you. So let us get started. Hi Argadeep. Yes, Arangiri. Rain, go away. So guys, those who do not know me, I'm Abhay Mahajan. I've done my engineering from IIT Roorkee, been teaching for the last 12 years now. I've produced some wonderful ranks in IITJ, in Olympiads, and one of my students has represented India in European Girls Mathematics Olympiad. The session is about you. बहुत जल्दी से कुछ क्विक इंफॉर्मेशन मुझे देनी है. सो गाइज उससे पहले so those of you who are not a part of Vedantu Olympiad School Olympiad batches, right? So Olympiad batches we are running and it is a full structured course. I know it is late now to join those batches because the syllabi is about to be over, because जब हमने start किया था तो अगस्त तक का प्लान किया था, because August is the time when pre-RMO usually happens. So अगस्त तो आने वाला है, so ज़्यादातर syllabus हो चुका है. So what do we do? So we are launching some fresh batches जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ and those batches will be out very soon. The information of those details of those batches will be out very soon. So we will be quickly covering, not quickly but in a way covering the entire pre-RMO syllabi for outside students. So those who are still not the part of Vedantu Olympiad School batches and they want to be a part of those batches, you need to fill in this form guys. So vdnt.in/vos maths, इसका जो description है that is there in the description box. ठीक है, so इसका जो link है this is given in the description link which is there and वहाँ पर click करो, अपनी basic details भरो and as soon as the batches are launched तो our team will quickly get into touch with you and enroll you. तुम्हें अलग से कुछ और करने का ज़रूरत नहीं है if your details are with us. अदरवाइज तुम दोबारा से लॉन्च हो जाएगा, तुम्हें पता नहीं लगेगा. देन आफ्टर 15 डेज और मे बी 1 मंथ और मे बी 2 मंथ्स तुम जागोगे और बोलोगे कि सर ये तो लॉन्च हो गया, मुझे पता नहीं लगा. सो द सेफ प्लेसेस, यहाँ पे फटाफट से अपना रजिस्ट्रेशन करवा दो, नॉट रजिस्ट्रेशन बट अपनी डिटेल्स भेज दो, सो दैट एज सुन एज द बैचेज आर लॉन्च, द फॉर्मल बैचेज आर लॉन्च, आवर टीम गेट्स इनटू टच विद यू. गॉट इट? यस, डोंट वरी पूर्णिमा, इवन इफ यू डोंट हैव एकेडमिक अचीवमेंट्स, योर स्कूल के अंदर नंबर तो आए होंगे ना, काफ़ी है. ठीक है, सो बस वो भर दो, उसके बेसिस पे आवर टीम विल गेट इनटू टच. ऑलराइट गाइस, ओके. सो दिस इज आवर सोशल मीडिया हैंडल, सो यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, ऑन फेसबुक, ऑन टेलीग्राम अगर तुम यहाँ पर हो. एंड किसी भी ओलंपियाड के बारे में इंफॉर्मेशन, उनके अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स निकलते हैं, रजिस्ट्रेशन लिंक्स निकलते हैं, उनकी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पर सोशल मीडिया में डालते रहते हैं. एंड ऑल्सो द इंफॉर्मेशन अबाउट आर न्यू अपकमिंग बैचेस, सो दैट ऑल्सो आर देयर ऑन दीज हैंडल्स. सो इफ यू आर ऑन एनी ऑफ दीज हैंडल्स यू कैन जॉइन अस, राइट? सो दैट इज इट. एंड एक और बच्चे बिफोर वी स्टार्ट, this is my telegram id, so this is how you can get into touch with me. So any kind of doubts related to Olympiads, if you have प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, आरएमओ की या इनमो की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, सो दिस इज माई टेलीग्राम आईडी, दिस इज माई ईमेल आईडी, यू कैन ऑलवेज गेट इनटू टच विद मी. Abhay 86 Mahajan. All right guys, so guys before we start, this is very important. So those who do not know what Vedantu Olympiad School is, so this is a wing
क्रिएटेड ओनली फॉर ओलंपियाड प्रिपरेशन। सो ओलंपियाड प्रिपरेशन के लिए हमने विंग एक स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, जिसका आविष्कार लास्ट ईयर हुआ था, पिछले साल। एंड बहुत अच्छा किया है, बिकॉज लास्ट ईयर वी लॉन्च फॉर्मल बैचेस। यूट्यूब पे तो हम बहुत लेट आए थे, बट लास्ट ईयर अप्रैल में हमने फॉर्मल बैचेस प्री आरएमओ के, आरएमओ के, इनमो के, एनएसईजीएस के लॉन्च कर दिए थे। और उसके बाद जुलाई के अंदर हम जूनियर्स के अंदर आए। जूनियर्स मतलब 5th 6th 7th भी हमने कवर करना शुरू किया। एंड इस साल फुल फ्लो से ये सब के सब चल रहे हैं। एंड वी ऑल्सो हैड सीनियर ओलंपियाड्स लाइक एनएसईपी, एनएसईबी, एनएसईए, एनएसईबी, इनकी प्रिपरेशंस भी चल रही थी एंड अभी भी चल रही हैं। So guys, this is the phenomenal result that we produced last year. Awesome result. पहले दिन, पहले ही डेब्यू पे हमने awesome century मारा है. So again, 55 of our students qualified to write INMO. So out of around 1100 students, पूरे इंडिया से 1100 बच्चे select हुए थे and उनमें से 55 बच्चे हमारे थे. 250 students got IOQM certificate, which is basically pre-RMO equivalent. So इस बार pre-RMO नहीं हुआ था, so उसकी जगह IOQM का एग्जाम हुआ था, तो उन्होंने सर्टिफिकेट्स बांटे हैं, मतलब अभी तक आए नहीं है बच्चों के पास, बट 250 के ऊपर बच्चे अपनी लिस्ट के अंदर हैं जो कि जिनको सर्टिफिकेट मिलेगा। 19 KVPY SX सिलेक्शन, 35 KVPY SS selections, 9 IOQ selections, 16 IOQJS Junior Science Olympiad, 16 of our students qualified last year. 4 IOQC selections, 2 IOQB, भाई the list is endless. मैं इतने नंबर्स नहीं बोल सकता, but this is the highlight. 2 of our students made it to OCS camp also. So one, Weber Bajaj, who represented Vedantu from the chemistry department, and Pushparaj from bio. So guys, these 2 students, they also were a part of OCS camp, the orientation camp, selection camp. And so this is huge achievement, guys. And this was achieved in 1 year. पहले साल में this got achieved. So this is again something which I'm super proud of. And अगर तुम भी अगर वेदांतु के स्टूडेंट हो, अगर तुम में से भी इनमें से कुछ भी क्वालिफाई किया है, you should also be proud of it. And guys, if you want your name to be there in the next year this slide, so अगले साल शायद मैं इस साल दोबारा से इसी तरह का एक क्या कहते हैं सेशन लूंगा, हो सकता है कि तुम्हारा नाम यहाँ पर जुड़ जाए. सो यू नीड टू बी ए पार्ट ऑफ वेदांतु ओलंपियाड स्कूल बैचेस. सो यूट्यूब में तो हम पढ़ाई करवा ही रहे हैं, बट बैचेस के अंदर इट इज अ वेरी स्ट्रक्चर्ड program, right? Because every 2 weeks we conduct a test. Every week we have 3 batches, and again we give daily assignments. तो वो YouTube में भी चल रहा है, but it is very structured and students can link to each other, can talk to each other. Telegram के अंदर वो लोग बात करते रहते हैं, doubts आपस में discuss करते रहते हैं. This is a very structured program that we conduct on Vedantu platform. And if you want to be a part of this platform, I've already told you किस तरीके से करना है. अभी फ्रेश बैचेस लॉन्च करने वाले हैं, जूनियर साइंस के भी एंड प्री आरएमओ के भी. तो उसके लिए अगर तुम्हें इंटरेस्टेड हो, यू नीड टू फिल दैट फॉर्म विच आई शोड ऑन द लास्ट स्लाइड. सो व्हाट इज प्री आरएमओ एंड हाउ टू रजिस्टर. सो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर प्री आरएमओ का डेट तो अभी आया नहीं है. बिल्कुल नहीं आया. एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है प्री आरएमओ के डेट के बारे में, बिकॉज वो मैं बताने वाला हूँ बहुत जल्दी. बट जब आ जाएगा तो हाउ डू वी रजिस्टर. बहुत सारे बच्चों को प्री आरएमओ को पता ही नहीं है. बहुत सारे बच्चे आईएमओ को दे रिलेट विद एसओएफ आईएमओ. So one is बच्चे इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड. सो दिस इज हर साल इंडिया से 5 बच्चे सेलेक्ट होते हैं जो कि इंडिया को 6 बच्चे रिप्रेजेंट करते हैं, एंड हर कंट्री से 6 बच्चे हर कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं. उनका एक ओलंपियाड टाइप का कॉन्टेस्ट होता है ओवर अ पीरियड ऑफ 2 days. तो 3 प्रॉब्लम्स ऑन 1 day एंड 3 प्रॉब्लम्स ऑन द सेकेंड डे, एंड दे फाइट विद ईच अदर and they win gold for their respective countries. So this is what we call IMO. SOF IMO is different. वो अलग है. That is a private body. So a lot of people actually get confused between these two. So guys, ये बहुत बढ़िया चीज़ है. This is a private organization. Again, I'm not saying कि ये इसका लेवल नीचे है, but ये जो है वो बहुत मास लेवल पे होता है, एंड स्कूल लेवल पे ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है. बट दिस इज समथिंग जो कि इंडिया, जो कि नेशनल गवर्नमेंट बॉडी सिलेक्ट करती है. सो अगेन प्री आरएमओ, सिंगल टेस्ट फॉर ऑल द क्लासेस फ्रॉम क्लास 8th to 12th. 8th, 9th, 10th, 11th, 12th का एक ही एग्जाम होता. बीट दैट एक ही एग्जाम. तो बहुत सारे बच्चे अब सोच रहे होंगे जिनको नहीं पता इसके बारे में कि सर हाउ कैन अ क्लास 8 स्टूडेंट compete with class 12th student. There is no match. But this is the beauty of mathematics, that जो पूछा जाता है, जो सिलेबाई होता है प्री आरएमओ के अंदर या आरएमओ के अंदर या इनमो के अंदर फॉर दैट मैटर, वो बच्चे बेसिक मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10th लेवल होता है.
राइट, जिसके अंदर सिमिलैरिटी, ज्योमेट्री, नंबर थ्योरी, बेसिक नंबर थ्योरी, बेसिक अलजेब्रा, इसके ऊपर सवाल आते हैं, बट वो सवाल बहुत अच्छे लेवल पे होते हैं, राइट. सो 11th एंड 12th में बेसिकली व्हाट इज डिफरेंट इज कैलकुलस. सो कैलकुलस का कोई रोल नहीं है ना प्री आरएमओ में, ना आरएमओ में, ना आईएनएमओ में, ना आईएमओ में. So calculus is never asked because we also know that, I mean not we, but they also know that 11th and 12th students always have that advantage because they know calculus, differentiation and integration. उससे कभी कभी बहुत सारे सवाल सिंपल हो जाते हैं, आसान हो जाते हैं. So no questions regarding calculus are asked. So basic geometry, basic algebra, basic number theory, basic combinatorics, and combinatorics is something which is not given in till class 10th of your NCERT books. तो ये तुम्हें अलग से पढ़ना पड़ता है, बट बाकी जो चीजें हैं उनको तुम्हें डेवलप करना पड़ता है अच्छे लेवल पे. सो दिस इज हाउ यू क्रैक प्री आरएमओ, राइट. सो क्या है प्री आरएमओ? सो प्री आरएमओ इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मैथमेटिक्स ओलंपियाड. दिस इज कंडक्टेड बाय द इंडियन विंग ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स एसोसिएशन, MTA. सो इंडियन विंग ऑफ मैथमेटिक्स टीचर एसोसिएशन, देयर इज अ साइट MTA. तुम गूगल करोगे, वहां पे साइट मिल जाएगी, उनके बारे में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. एंड प्री आरएमओ एग्जामिनेशन इज यूजुअली हेल्ड इन अगस्त, यूजुअली मतलब कि अच्छे वक्त पे. अभी अच्छा वक्त नहीं चल रहा. सो लास्ट ईयर जो एग्जामिनेशन प्री आरएमओ अगस्त में होता था यूजुअली, लास्ट ईयर इट हैपन इन जनवरी, मतलब अभी इसी साल. तो जनवरी में हुआ था 17th ऑफ जनवरी को. एंड इस साल अभी तक तो कोई संकेत नहीं है जल्दी होने के, बट देयर इज अ वेरी सिंपल इंफॉर्मेशन जो कि अभी उनकी तरफ से आई है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं. सो दीज आर द स्टेजेस ऑफ मैथमेटिक्स ओलंपियाड वेरी क्विकली. सो फर्स्ट स्टेज इज प्री आरएमओ. एंड माइंड यू गाइस, प्री आरएमओ का जो लेवल होता है ना, दैट इज डिफिकल्ट देन JEE एडवांस्ड. ठीक है, तो ये जो पेपर है, हालांकि यूल से दैट सर हाउ आर यू कंपेयरिंग दीज टू, बिकॉज इन दोनों का सिलेबस ही अलग अलग होता है. आई एम टॉकिंग प्योरली इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस. तो यहाँ पे जो टॉपर का परसेंटेज आता है और वहां पर जो टॉपर का परसेंटेज आता है, यहाँ एवरेज परसेंटेज जो यहाँ पर होता है और एवरेज परसेंटेज जो वहां पर होता है, उसमें बहुत ज्यादा मिसमैच होता है. ठीक है, तो इसका जो एवरेज परसेंटेज होता है आउट ऑफ ऑल द पीपल across India, across 5 classes, 8, 9, 10th, 11th, 12th who give pre-RMO, the average percentage is pretty low as compared to the students who give JEE Advanced. So usually around 14,000 students get selected and they are able to write this exam called RMO. RMO exam is the second stage, which is a subjective. So this is a subjective examination. Subjective exam होता है. This is kind of objective in the sense that हर क्वेश्चन का आंसर इज फ्रॉम 00 to 99. सो एवरी क्वेश्चन का आंसर इट्स अ न्यूमेरिकल डबल डिजिट नंबर फ्रॉम 00 to 99. सो दिस इज द पैटर्न ऑफ प्री आरएमओ. आरएमओ इज अ सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन जिसके अंदर तुम्हें 6 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं 3 घंटों के अंदर. एंड इवन इफ यू आर एबल टू सॉल्व गाइस 2 क्वेश्चंस, 2-2.5 क्वेश्चन भी अगर तुम पूरे सॉल्व कर लोगे, यू आर थ्रू टू राइट दिस प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन विच इज कॉल्ड इंडियन नेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड. तो ये अराउंड 1300 बच्चे 1400 बच्चे के अराउंड क्लियर करते हैं. सो अराउंड एवरी ईयर 1300 स्टूडेंट्स 1400 स्टूडेंट्स अक्रॉस इंडिया आर एलिजिबल और गेट सिलेक्टेड फ्रॉम आरएमओ टू दिस स्टेज कॉल्ड इनमो. सो अगेन बच्चे, इनमो लिखना ही बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है कि यार उस स्टेज पे पहुंच जाएं किसी तरीके से. इनमो क्लियर करना देखो कितना बड़ा प्रेस्टिजियस बात होगा. सो अक्रॉस इंडिया 35 स्टूडेंट्स each year 35 students get selected for this camp IMOTC, which is conducted by Bama research center in Mumbai, and India's best scientists, India's best teachers train you for over a month. तुम्हारे टेस्ट होते हैं, तुम्हारे ट्रेनिंग होती है, and ultimately 6 lucky ones, 6 students get to wear the tricolor on their sleeves and they get to represent India in international Maths Olympiad. So this is the structure of Maths Olympiad. So guys, यहाँ तक पहुँचना is again a dream of a lot of students, right? So this is really a dream. पूरे इंडिया से 5 क्लासेस से सिर्फ 35 बच्चे इनमो क्लियर करते हैं. और इनमो क्लियर समझ लो, इनमो एक ऐसा एग्जाम है बच्चे जो 4 घंटे का एग्जाम होता है. दिस इज अ 4-hour एग्जामिनेशन consisting of 6 questions, and even if you do 2 questions, 2.5 questions right, पूरे के पूरे अगर 2 questions भी सही हैं तुम्हारे, mostly you get selected for this. So how difficult this examination is. Again, इसमें अंदर कुछ और भी चीज़ें होती हैं. There is a girls quota, there is 12th क्लास का अलग से कोटा होता है इसके अंदर, बट वो कोटा बहुत कम होता है. बट मेनली दिस इज हाउ इट इज, राइट? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैथ्स ओलंपियाड गाइज. एंड ओके, सो कोविड टाइम्स में लास्ट ईयर क्या हुआ था स्ट्रक्चर? सो लास्ट ईयर में उन्होंने एक स्टेज बीच में से खा गए थे, बिकॉज अगेन वी डिड नॉट हैव टाइम.
सो दिस वॉज द फर्स्ट स्टेज. इसका नाम उन्होंने प्री आरएमओ की जगह IOQM कर दिया था. द पैटर्न वॉज एग्जैक्टली द सेम, बट ओनली 1100 स्टूडेंट्स, they selected only 1100 students out of these bunch who could write this INMO examination on 7th of March. एंड यहाँ से ऑब्वियसली जो लिस्ट आई है वो 35 की लिस्ट आई है, और कुछ पुराने बच्चे भी थे जिन्होंने लास्ट ईयर इनमो क्लियर कर लिया था, वो ऑटोमेटिकली उन्होंने भी इनमो लिखा था, तो कुछ बच्चे वो भी ऐड हो गए थे, सीनियर्स जिनको बोलते हैं. सो अगेन यहाँ से ये उड़ान है. सो दिस वॉज द लास्ट ईयर स्ट्रक्चर. नाउ इस साल क्या होगा? विल इट बी दिस स्ट्रक्चर और विल इट बी द प्रीवियस स्ट्रक्चर? नो वन नोज, बिकॉज अगेन वी आर काउंटिंग ऑन कि कितनी जल्दी केसेस कम होंगे, कितनी जल्दी ये महामारी बंद होगी. सो नो वन नोज कि क्या होने वाला है इस साल. एंड सो अगेन बट वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरी सिनेरियो. सो बेसिकली ये वाला जो स्टेज है ये तो होगा ही होगा, कुछ भी कर लो, बिकॉज इसके बिना, क्योंकि दिस इज द केसेस, दिस इज द स्टेज फॉर मासेस, बिकॉज ये एक तरह से सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है जिसका चेकिंग मैनुअली नहीं करना पड़ता. तो यहाँ से कुछ बच्चे सिलेक्ट होकर फाइनल एग्जाम देते हैं, जो कि ये. तो 2 स्टेजेस होंगी जैसे कोविड के लास्ट ईयर हुई थी, या 3 स्टेजेस होगी जो कि नॉर्मल ईयर होती हैं. वी नेवर नो, नो वन नोस. ठीक है, तो ये स्टेज तो होना ही होना है. तो दिस इज व्हाट वी कॉल प्री आरएमओ. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें पिछले साल 1100 बच्चे ही सिलेक्ट हुए थे. 1100 के अलावा मेरे बच्चों they distributed around 7-8,000 सर्टिफिकेट्स. कुछ सर्टिफिकेट्स भी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए थे, अराउंड 5-6-7,000 सर्टिफिकेट. आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट नंबर. तो वो सर्टिफिकेट बेसिकली यू आर अगर इफ यू क्लियर्ड योर बेसिक स्टेट कट ऑफ मार्क्स, तो तुम्हारे पास तुम एक IOQM सर्टिफिकेट होल्डर होता है, विच इज एन इक्विवेलेंट टू प्री आरएमओ. एंड प्री आरएमओ क्लियर करना बच्चे एक बहुत बड़ा रिज्यूमे पॉइंट होता है, because a lot of companies give actual weightage to whether you have cleared pre-RMO or not, because pre-RMO clear करना एक बहुत बड़ी चीज होती है. ठीक है, so it acts as a great resume point. and again आगे जाकर मैथमेटिक्स में अगर इंटरेस्ट है तो अगेन RMO क्लियर करना या INMO क्लियर करना इज अ बिग डील, एंड यू गेट वेरी इजी एडमिशन इनटू सम ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस ऑफ द कंट्री ऑल्सो. राइट, सो दिस इज द स्ट्रक्चर गाइज. एंड गोइंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं. सो दिस ईयर क्या लेटेस्ट चीज है, क्या लेटेस्ट अनाउंसमेंट है? सो एज पर द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स 15 सितंबर के बाद दे विल डिसाइड कि क्या होने वाला है. सो दिस ईयर द डेट्स विल बी रिलीज आफ्टर 15th of September एज पर द डिटेल्स प्रोवाइडेड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट विच इज MTI. सो 15 सितंबर के बाद वो बताने वाले हैं कि क्या होगा. तो हो सकता है कि दे विल गो बैक टू द ओरिजिनल थिंग, प्री आरएमओ RMO INMO. हो सकता है कि लास्ट ईयर वाला स्ट्रक्चर दोबारा से फॉलो हो, विच वॉज IOQM एंड फॉलोड बाय INMO एग्जामिनेशन, जो लास्ट ईयर फॉलो किया था. सो नो वन नोस. सो हमें अभी बेसिकली क्या करना है, जिन बच्चों के लिए पर्टिकुलरली पहला अटेम्प्ट है या पहली बार इनको पता लगा कि भाई प्री आरएमओ होता क्या है, वी नीड टू प्रिपेयर फॉर प्री आरएमओ फर्स्ट ऑफ ऑल. INMO तो बात की बात है. सो अगर इफ यू विल डू वेल इन विद प्री आरएमओ बैचेस, और जो ऐसे भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हमारे पास जो प्री आरएमओ बैचेस में बहुत अच्छे कर रहे थे, उनको हमने ऑटोमेटिकली आरएमओ बैचेस में शिफ्ट कर दिए, जो हमारे इंटरनल चल रहे हैं. एंड जो आरएमओ बैचेस में अच्छा कर रहे थे उनको हमने ऑटोमेटिकली INMO बैच दिए. सो इफ यू परफॉर्म वेल इन द बैचेस यू आर इन, वी विल ऑटोमेटिकली अपग्रेड योर बैच. राइट, सो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर. एंड so a lot of people will ask, sir, why do we want to do pre-armo? So मैंने इतने बड़े reasons दे दिए, but फिर भी just for the sake of understanding, so these are the various फायदे of doing or clearing or preparing for pre-RMO. So one is early exposure to learning and competition. So guys, this is the major important one, because a lot of good students, they don't have good problems to solve, and NCERT में अच्छे problems नहीं होते, RD शर्मा में ठीक problems होते हैं. उसके बाद क्या? So एक बच्चा जो स्कूल में बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत बढ़िया कर रहा है, उसको अच्छे प्रॉब्लम्स के लिए क्या करना चाहिए? तो और कुछ तो है ही नहीं. NCERT तो हो गई, RD शर्मा तो हो गई, अब क्या करे? अब वो ओलंपियाड का प्रिपरेशन करे, बिकॉज ये चीज एक्चुअल में दिमाग खोलता है. एक्चुअल में दिमाग खोलता है, एक्चुअल में प्रॉब्लम्स किस तरीके से सॉल्व करने हैं, किस तरीके से प्रॉब्लम्स को अटैक करना है, ये तैयारी प्री आरएमओ की तैयारी सिखाता है. इसके बिना लॉट ऑफ पीपल actually struggle. You might have heard stories of people who have been getting 98%, 99% in class 10th boards, taken non-medical or medical, and struggling in 11th and 12th. You must have seen that. This happens because कहना नहीं चाहिए, but rot learning promote हो रही है बच्चे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, एंड दिस इज नॉट स्पेसिफिकली गुड फॉर वेरी ब्राइट स्टूडेंट्स. बहुत अच्छे बच्चों के लिए इतना अच्छा नहीं है, बिकॉज उनके पास अगर अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी में करने के लिए कुछ नहीं है, सो उनका दिमाग अल्टीमेटली खराब हो रहा है.
सो ये चीज़ अगर तुम इवन इफ यू हैव अ लुक एट इवन 1 ईयर, किसी भी 1 साल का प्री आरएमओ का पेपर उठा लो मैथमेटिक्स का, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे अगर तुम्हें प्री आरएमओ के बारे में नहीं पता. यू विल एक्चुअली नो व्हाट एक्चुअल मैथमेटिक्स इज, मैथमेटिक्स एक्चुअली होता क्या है. सो प्री आरएमओ का कोई भी 16, 17 का, 18 का, 19 का, या फिर इस बार IOQM जो 2021 में हुआ है, कोई भी एक पेपर उठा के just try to see the problems. You'll if you're a mathematics enthusiast, अगर तुम स्कूल में बहुत अच्छा कर रहे हो, you will actually start liking कि भाई प्री आरएमओ तो गॉड लेवल है, बहुत मजा आने वाला है. There are rewards and recognition. So if you clear, INMO, अगर if you're amongst the top 35 students of the country, तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो तुम्हें बहुत डायरेक्ट एंट्री देते हैं. सो अगर तुम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, इनमो तुमने क्लियर कर लिया है, इफ यू क्लियर्ड इनमो, तो IIT बॉम्बे जैसे इंस्टीट्यूट्स भी डायरेक्ट एंट्री, डायरेक्ट तो नहीं, बट दे कंडक्ट अ पेपर, वेरी सिंपल पेपर विच इज नॉट IIT JEE, टू गेट एडमिशन इनटू देयर मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट. सो ऐसे ही IISc है, या बहुत सारे और इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि डायरेक्ट CMI है, जो कि डायरेक्ट एंट्री देते हैं टू द वंस हु क्लियर INMO. ठीक है. और प्री आरएमओ के लिए भी बहुत सारे फायदे हैं, बिकॉज दे एक्ट एज अ ग्रेट ब्राउनी पॉइंट्स, एंड ऑल्सो दे गिव यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, दे बूस्ट योर कॉन्फिडेंस लाइक एनीथिंग. सोचो यार, टॉप 14,000 स्टूडेंट्स में हो, इवन इफ यू इन क्लास 8 और 9th, एक 8th क्लास का बच्चा, 9th क्लास का बच्चा अगर प्री आरएमओ क्लियर कर रहा है, ही इज अमंग्स द टॉप 14,000 ब्रेन्स ऑफ द कंट्री. See the amount of confidence that it is going to give you. So it will lift up your spirits like anything, and even if you don't clear it, even if you're very very close to the cutoff, तब भी the confidence level is going to be very up. So अगर preparation भी करते हो ना, that is at a different level. You will be at a different level, and if you are thinking of taking sciences in class 11th and 12th, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं आने वाली, या बहुत कम प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज सोचने का तरीका, सोचते कैसे हैं, कैसे जाते हैं, कैसे प्रॉब्लम्स को अटैक करते हैं, ये तुम्हें समझ में आ जाएगा पहले ही. राइट. सो दिस इज इट. एंड अगेन ये मैंने ऑलरेडी बता दिया, इफ इट प्रिपेयर्स यू फॉर द कंपटीशन दैट लाइज अहेड लाइक JEE/NEET, तो नीट के लिए भी बच्चे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बायो लेते हैं, मैथमेटिक्स नहीं लेते, बट दे प्रिपेयर फॉर प्री आरएमओ. सो उनके अल्टीमेटली इट इज नॉट अबाउट डूइंग वेल इन मैथमेटिक्स, इट इज अबाउट तुम्हें समझ में आ जाता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, हाउ टू अटैक द प्रॉब्लम्स, सोचना कैसे, अगर कोई नया प्रॉब्लम मेरे सामने आएगा तो उसको कैसे अटैक करना है, कैसे सॉल्व करना है. सो दिस इज व्हाट इट टीचेस यू, द प्रिपरेशन. And again, last but not the least, it opens the doors to very fine universities of the world like Harvard and many more, and that also with scholarship. So if you are a part of Indian team who represents India, तो तुम्हें बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में, बहुत सारे इंटरनेशनल कॉलेजेस में बहुत अच्छी स्कॉलरशिप के साथ एंट्री डायरेक्ट मिल जाती है. सो दीज आर द मेजर बेनिफिट्स ऑफ प्रिपरेशन. एंड किस तरह से रजिस्टर करना है बच्चे, अभी द डेट इज नॉट आउट. ठीक है, कब होगा? सितंबर 15 के बाद में पता लगेगा कि भाई फॉर्मेट क्या होने वाला है. बट जैसे ही फॉर्म्स निकलते हैं, दिस इज व्हाट यू नीड टू डू. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू गो टू दिस वेबसाइट IAPTexam.in. इनफैक्ट ये एग्जाम, ये साइट में अभी भी जाओ तुम. ठीक है. सो दिस साइट एंड ऑल्सो MTAI. The other side is MTI. So just try to learn about these organizations, MTI and IAPTexam.in. तो ये these are the government of India websites and maintained by the Indian government. And तो यहाँ पे तुम्हें पता लग जाएगा कि what is Mathematics Olympiad all about, and क्या प्रोग्राम है, क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं, and lot of other things. You can need to download the pre-RMO IMO application of 21. जब फॉर्म्स आ जाएंगे तो डाउनलोड करोगे, अपनी डिटेल्स ऑनेस्टली फिल करोगे, एंड देन अगेन सबमिट टू द रजिस्ट्रेशन सेंटर. नॉर्मली जब ये ऑफलाइन फॉर्म में होता था तो रजिस्ट्रेशन सेंटर यूजुअली क्या होता था, केवीज, केंद्रीय विद्यालय, जो भी तुम्हारे आसपास जो भी सबसे नियरेस्ट केंद्रीय विद्यालय होता था, दैट यूज टू बी द रजिस्ट्रेशन सेंटर इन गुड टाइम्स. बट लास्ट ईयर इट वॉज प्योरली ऑनलाइन. एंड so again, last में you need to pay the registration fees using offline or online mode. So last year it was online, but usually it is offline and through KV, केंद्रीय विद्यालय. अगर केंद्रीय विद्यालय आसपास नहीं है तो कोई ना कोई स्कूल ही होता है सेंटर. सो वही सेंटर होता है, वहीं पर जाकर तुम्हें एग्जाम देना होता है. इट इज़ एन ऑफलाइन एग्जाम एंड सेंटर्स में जाके तुम्हें देना होता है. सो दिस इज हाउ यू नीड टू रजिस्टर. एंड अगेन इसके बारे में हम डिटेल में दोबारा चर्चा करेंगे बच्चे जब फॉर्म्स आ जाएंगे, एंड तब मैं दोबारा से एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा कि क्या क्या फॉर्म्स, क्या इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हें फिल करनी है. बट दिस इज हाउ दिस इज व्हाट द प्रोसेस इज. एंड जस्ट गो थ्रू दीज टू वेबसाइट्स IAPTexam.in एंड MTI.org. राइट. तो यहाँ पे तुम्हें पता लगेगा कि यह चीज़ें हैं क्या. ऑलराइट.
Okay, so how can VOS help you? So one is VOS is already, Vedantu Olympiad School is already taking a lot of batches. बहुत सारे batches ले रहे हैं हम, and those batches are on the verge of completion only because last 2-3 chapters रह गए हैं हर batch के अंदर. एंड उसके बाद जैसा कि हमने लास्ट ईयर भी किया था, द बैचेस वर प्लान टिल अगस्त, क्योंकि हमने तो लगा कि अगस्त में हो जाएगा, तो वहाँ तक ही प्लानिंग हुई थी. बट उसके बाद वी स्टार्टेड रिवाइजिंग थिंग्स. ठीक है, सो ये जो रिजल्ट्स आए हैं वो इसीलिए आए थे बिकॉज हमने चीज़ों को रिवाइज करना शुरू किया. बच्चों को जो भी पढ़ाया था उनको रिवाइज किया, बहुत सारे एग्जाम लिए, एंड एग्जाम हमने रोके नहीं. एवरी 2 weeks देयर वॉज एन एग्जाम. हर 2 हफ्ते में एक एग्जाम होता था. लास्ट ईयर भी, इस हफ्ते भी चल रहा है वैसा. Right, so this was one thing which kept us going and which kept our students going, and ultimately they performed superbly well in exams like PRMO and RMO, IOQM. And this year also the plan is almost the same, but also one more thing that we are doing is we're launching fresh batches. फ्रेश बैचेस लॉन्च कर रहे थे. लास्ट ईयर हमने जो बैच लॉन्च किया था ना, अगर तुम्हें याद है, इट वॉज अ बूस्टर बैच विच वॉज लॉन्च इन आई थिंक नवंबर के अंदर हमने लॉन्च किया था. दैट वॉज द बैच. बट दिस ईयर वी आर लॉन्चिंग बैचेस प्रीटी सून बिकॉज हम डिटेल में सब कुछ करवाना चाहेंगे. दैट वॉज सॉर्ट ऑफ क्रैश कोर्स, बट यहाँ पर हम डिटेल में सब कुछ कराना चाहेंगे सब बच्चों को. So this is one information that I wanted to share with you, and the planning is already in the process, and बहुत जल्दी planning खत्म होगी, और जैसे ही खत्म होगी I will come with the announcement of launching a new batch. and उसके लिए तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा, जो मैं पहले बता चुका हूँ, तुम्हें Google फॉर्म में अपनी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी. So that is number 1. नंबर 2, अगर तुम्हें लगता है कि सर नहीं, वी डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ योर बैचेस, हमें तो बस टेस्ट दे दो. सो गाइस, वी आर कमिंग अप विद ऑसम टेस्ट सीरीज. सो दिस इज द न्यू अनाउंसमेंट दैट आई केम हियर फॉर. तो पहले तो सारी चीजें कहानी थी. तो दिस इज वन इंफॉर्मेशन विच आई वांटेड टू गिव यू गाइस. सो दिस इज वी आर प्रेजेंटिंग एंड टेकिंग आउट द ऑल इंडिया PRMO मॉक टेस्ट सीरीज. तो पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज निकाल रहे हैं, एंड विच इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. सो अगर तुम ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हो, इट इज अ ग्रेट चांस फॉर यू टू सी वेयर डू यू स्टैंड एट नेशनल लेवल. बिकॉज ये जो सीरीज है ना बच्चे, ये सीरीज हमारे अपने बच्चे भी देंगे जो हमसे अभी पढ़ रहे हैं. सो दिस विल बी टेस्टिंग यू एट एन ऑल इंडिया लेवल बिफोर द एक्चुअल PRMO टेस्ट. सो अगेन, अगर तुम PRMO का प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हो, then तो you should definitely enroll this. The good part is this is totally free of cost. कोई पैसा नहीं है. Thus that you will be able to judge yourself at the national level कि तुम्हारी प्रिपरेशन किस तरीके से चल रही है. Secondly, अगर तुम प्रिपरेशन नहीं कर रहे, तो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं. दोनों ही चीजें करनी है तुम्हें. एक तो ये करना ही करना. So this you have to do. There is no other option because बिना टेस्ट के यार तुम्हें पता नहीं लगेगा where do you stand. टेस्ट दो. Even if you score 0, देखो बच्चे, इस टेस्ट के अंदर, इन टेस्ट के अंदर 0 स्कोर करना, बट अगर तुम 3 घंटे शिद्दत से बैठते हो और फिर भी 0 स्कोर आते हैं, इट इज गुड बिकॉज यू नो कि चीजें किस तरीके से नहीं करनी. तुमने फिर भी कुछ ना कुछ सीखा है. ठीक है. सो अगेन, मेहनत करते रहो यार, बिकॉज कभी भी एक बार जो चीजें शुरू हो गई ना, फिर देयर इज नो स्टॉपिंग यू. माई फेवरेट कर्व, बीइंग अ मैथ्स टीचर, मेरा जो फेवरेट कर्व है ना, दैट इज e to the power x. मेरा फेवरेट कर्व है ना, दैट इज e to the power x. e to the power x. If you know what e to the power x looks like, guys, e to the power x का ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है. This is 0,1. So this is what I keep on telling to all my students on YouTube and also on Vedantu platform. So e to the power x का देखो कहानी क्या होती है बच्चे. e to the power x की कहानी क्या होती है? आधी जिंदगी माइनस इन्फिनिटी से 0, वो 0 से 1 तक आता है. आधी जिंदगी वो 0 से 1 तक आने में बिता देता है, और इसको हम बोलते हैं स्ट्रगलिंग फेज. एंड दिस हैपेंस विद अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आल्सो. एज स्टूडेंट आल्सो आई स्ट्रगल अ लॉट. सो दिस वाज माय स्ट्रगलिंग फेज व्हेन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE. सो स्टार्टिंग में जीटर्स आते हैं, सबको आते हैं. तो मेनी ऑफ यू, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर अभी भी ना प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करने में, नहीं हो पा रहा, नहीं कर पा रहे, नंबर आ ही नहीं रहे. lot of students do that because we keep on tracking the results of a lot of students and बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर नहीं हो ही नहीं पा रहा, तीसरा टेस्ट हो गया, चौथा टेस्ट हो गया, अभी तक सिंगल डिजिट रैंक है. सो गाइज, e to the power x ना अपनी आधी जिंदगी 0 से 1 पे पहुंचने में लगा देता है. स्ट्रगलिंग फेज. एक बार कॉन्फिडेंस गेन हो गया, एक बार चीजें समझ में आ गई, उसके बाद भाई उसको रोकने वाला कोई नहीं है. उसके बाद कोई नहीं रोक पाता उसको.
ई टू दी पावर एक्स का अगर तुम ग्राफ डेस्मोस में ड्रॉ करके देखो ना, यू विल रियली गेट सरप्राइज्ड। आधी जिंदगी यार, आधी जिंदगी 0 से 1 तक पहुंचता, सिर्फ माइनस इन्फिनिटी से 0, आधा सफर सिर्फ इतना लगाता है। स्ट्रगलिंग फेज, अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा है, अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग कर रहा है। मार्क्स नहीं आ रहे कोई चक्कर नहीं, बट एक बार फाउंडेशन बिल्ड हो गया, एक बार फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो गई, उसके बाद देयर इज नो स्टॉपिंग। यही तुम लोगों को करना है, यही हम लोग को करना है। सो अगर नंबर नहीं आ रहे, इट इज ओके टू स्कोर 0 इन दीज टेस्ट, बट गिव दोस टेस्ट, सिट फॉर 3 आवर्स, सिट फॉर 3 आवर्स, यू विल डेफिनेटली लर्न अ लॉट। ठीक है, सो मैं बता रहा हूं ये टेस्ट सीरीज तुम्हें ज्वाइन करनी है बिकॉज इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, सो दिस इज वन थिंग दैट वी आर डूइंग टू spread awareness amongst a lot of students, because one objective of Vedantu Olympiad School is to raise the academic standards of the students of India. Because सब लोगों को पता है यार, इंडिया stands nowhere as far as international Math Olympiad is concerned. इंडिया एक भी बार अभी तक टॉप नहीं किया, और मैंने अभी लेटेस्ट वीडियो भी निकाला इसी चैनल के अंदर जहां पर मैंने बताया कि कौन सी कंट्री कितनी बार टॉप किया। तो मेरे को तो यार वो देख के ना बहुत ज़्यादा मतलब दुख हो रहा था कि यार वाई इज नॉट इंडिया नॉट देयर इन दैट लिस्ट, एंड वी ऑल वांट एज इंडियंस, वी ऑल वांट टू सी दैट हैपनिंग। और वो सिर्फ तुम कर सकते हो यार, हम सिर्फ गाइड कर सकते हैं। सो ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो तुम्हें लेने हैं, एंड पर्टिकुलरली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर इन क्लास 7th 8th 9th, अभी भी जेई का प्रिपरेशन स्टार्ट करने में टाइम है, तो यार इस पे लग जाओ। लेट अस जॉइन हैंड्स टुगेदर एंड डू समथिंग फॉर इंडिया, मेक आवर कंट्री प्राउड, बिकॉज काफ़ी इट इज़ हाई टाइम नाउ। इंडिया में टैलेंट का कमी नहीं है, वी ऑल नो दैट। जितनी भी वर्ल्ड की टॉप कंट्रीज हैं, हम सब लोगों को पता है कि वहाँ पे टॉप पे इंडियंस बैठे हुए हैं यार, बट जस्ट दैट वो अवेयरनेस ना बहुत लेट आती है। जब जब अवेयरनेस आती है तब तक आज बच्चा 11th क्लास में हो जाता है, 12th क्लास में हो जाता है, और वहाँ पे जेई का प्रेशर, नीट का प्रेशर स्टार्ट होता है, विच इज़ नॉट रॉन्ग, जो कि करना भी चाहिए, बिकॉज अगेन वही उसकी ज़िंदगी बनाता है। बट 8th 9th 10th लेवल पे देर इज़ हार्डली एनी अवेयरनेस। तुम लोगों को है, तुम लोग फॉलो कर रहे हो, बट बहुत ऐसे ऐसे ब्रिलियंट बच्चे होते हैं जो कि 11th में जाके जिनको ओलंपियाड्स के बारे में एक्चुअली में पता लगता है। सो उन बच्चों को यार इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आओ। सो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सो इफ यू नो एनी वन हु इज वेरी गुड इन मैथमेटिक्स एंड इज इन क्लास से 5th or 6th or 7th or 8th or 9th or 10th for that matter, please bring him or her on this platform so that let us do something for India. सिंपल सी बात है यार, एंड दिस इज ये सिर्फ हमारा नहीं है यार, ये जो विंग शुरू हुआ था वो इसी के कारण हुआ था, बिकॉज हम कुछ भी या बहुत कम फीस चार्ज करते हैं। द ओनली थिंग इज एक ही चीज़ है, एक ही सपना है, एक ही लक्ष्य है, इंडिया शुड बी देयर, इंडिया शुड बी देयर, इंडिया सबसे ऊपर होना चाहिए। सो दिस इज द ओनली लक्ष्य। एंड अगेन ये छोटा एम नहीं है बच्चे, ये बहुत बड़ा एम है। तो ये ऐसा नहीं है कि 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर कंप्लीट होगा। इसके लिए फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जो कि हम कर रहे हैं। फाउंडेशन का मतलब 5th 6th 7th से ही बच्चे करने पड़ेंगे, उनको ओरिएंट करना पड़ेगा, एंड दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। सो लास्ट ईयर में जैसा कि मैंने बताया, हम 5th 6th 7th क्लास के बच्चे भी पकड़ने शुरू कर दिए हैं, उनको हम डेवलप कर रहे हैं। वो जब 8th में आएंगे मोस्ट लाइकली, जो अब आगे जाके, एंड ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारी और कंपनीज भी कर रही हैं, एंड आई एम सुपर हैप्पी टू सी दैट। एंड जब वो बच्चे 8th और 9th में आएंगे, आई एम वेरी श्योर दिल डू वंडर्स फॉर इंडिया, राइट। सो दिस इज वन थिंग गाइज दैट यू नीड टू डू। अब सर इसके लिए करना क्या पड़ेगा? सो इसके लिए करना ये पड़ेगा बच्चे, ये जो लिंक है ना vdnt.in VOW, दैट मीन्स वेदांतु ओलंपियाड विजार्ड प्री-RMO 2021, इस पे जाके अपनी डिटेल्स भरनी पड़ेंगी ना, इस पे जाके रजिस्टर करना पड़ेगा। सिंपल, लेट मी शो यू हाउ। एक बार बताता हूं मैं तुम्हें किस तरीके से करना है। खड़ जाओ। ओके, सो यस, सो दिस इज माई लेक्चर रनिंग। यहां पर जाओ, ये मैंने ऑलरेडी म्यूट किया हुआ है, ठीक है। तो फटाफट से लाइक कर दो, अगर अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दो फटाफट से गाइज, इफ यू आर एंजॉयिंग दिस। सो गाइज दिस इज द लिंक। So register for WOW All India Pre-RMO Test Series. This is free of cost. I want each and every one of you to do it now. अभी के अभी अपने आप को रजिस्टर करो, because this is totally free of cost. यहाँ क्लिक करोगे, तुमसे लॉगिन डिटेल्स पूछेगा, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी डाली हुई है, तो मेरा नाम पता नहीं कि प्रशांत क्यों आ रहा है, बट मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ना रजिस्टर कर दिया गलती से। तो मैं वैसे ही चेक कर रहा था कि इस तरह से बच्चों को दिखाऊंगा, बट मेरे पास गलती से बाय नाउ का ऑप्शन होगा। बाय नाउ का मतलब तुम्हें कुछ पे नहीं करना, बिकॉज इट इज ऑफ 0 कॉस्ट। सो एज सून एज यू क्लिक ही विल आस्क योर लॉगिन डिटेल्स। तो अगर तुम वेदांतु के स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली तुम्हारे पास लॉगिन डिटेल्स होंगे, नहीं हो तो फटाफट से एक अकाउंट बना लो, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। एंड जैसे ही तुम अकाउंट बनाओगे, वहाँ पर एक बाय नाउ का ऑप्शन आएगा।
सो बाय नाउ मीन्स क्योंकि हर चीज़ का प्रोडक्ट का कॉस्ट होता है, तो बस इस प्रोडक्ट का कॉस्ट इज 0 रुपीज़, बट फिर भी बाय नाउ करना पड़ेगा. दैट इज हाउ यू विल एंटर दैट कॉस्ट. तो जैसे ही मैंने एंटर कर दिया, जैसे ही मैंने एंटर किया, तो ये दीज आर द कोर्सेज जो मतलब इस अकाउंट्स ने खरीदे हुए हैं वेदांतु के. एंड ये एक और है. सो वेदांतु ओलंपिया वीओ ऑल इंडिया ऑल इंडिया प्रीआरएमओ मॉक टेस्ट सीरीज. सो दिस इज अपकमिंग टेस्ट सीरीज 20th of June से 15 जनवरी. 15 जनवरी मतलब दिस इज द वर्स्ट. ठीक है, तो वर्स्ट सिनेरियो क्या है कि लास्ट ईयर 17 जनवरी को प्री IOQM हुआ था, तो इस साल भी हो सकता है कि जनवरी तक चला जाए, हो सकता है, दिस इज अ पॉसिबिलिटी. तो तब तक हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम तुम्हारे टेस्ट लेते रहेंगे. महीने में ऑलमोस्ट एक टेस्ट, एवरी मंथ देयर विल बी अ टेस्ट. एंड इस टेस्ट, फर्स्ट जो टेस्ट हो रहा है अभी दिस संडे, उसके लिए तो कोई ऐसा प्राइज नहीं है, सिर्फ शाबाशी मिलेगी. बट लेटर ऑन ऑल्सो जो हम टेस्ट लेंगे उसके लिए प्राइज मनी भी देंगे. और लास्ट ईयर भी हमने किया था, वी डिस्ट्रीब्यूटेड कैश वाउचर्स एंड अमेजन वाउचर्स टू दी टॉपर्स. एंड इस ईयर भी वी विल बी डूइंग द सेम. सो फर्स्ट ईयर जो पहला टेस्ट है अभी जो संडे को होने वाला है, इस संडे को होने वाला है, 20 जून को होने वाला है, उसके लिए कोई प्राइज मनी नहीं है, सिर्फ शाबाशी मिलेगी. सब्सिक्वेंट टेस्ट के अंदर वी विल ऑल्सो बी कीपिंग द प्राइज मनी. सो दिस इज अ सीरीज बच्चे, जो कि पहला टेस्ट अभी 20 जून को हो रहा है एंड सब्सिक्वेंट होते रहेंगे. सो गाइस, दिस इज व्हाट यू नीड टू बाय राइट नाउ, बिकॉज दिस इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड सर ये टेस्ट तो दे देंगे सर, व्हाट इफ तैयारी तो की नहीं हमने, 0 नंबर आएगा, कोई बात नहीं. 3 घंटे है ना, 3 घंटे बैठ के टेस्ट दो, सिर्फ सोचो, हर प्रॉब्लम के बारे में सोचो, जिस प्रॉब्लम के बारे में तुम सोच सकते हो. बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स यू विल बी एबल टू रिलेट. यू माइट नॉट बी एबल टू सॉल्व, बट रिलेट कर पाओगे. सो अगर तुमने एक भी प्रॉब्लम खुद से कर दिया ना, इट विल गिव यू सेंस ऑफ अचीवमेंट. एंड लेट मी टेल यू गाइस, लेट मी टेल यू, देर आर सर्टेन स्टेट्स, कुछ स्टेट्स हैं जहां पर कट ऑफ इज एज लो एज 2 मार्क्स. कट ऑफ बचे कम 2 नंबर भी है, कट ऑफ 2 नंबर भी है. देखो यहाँ पे. सो दिस इज 2019 प्री आरएमओ कट ऑफ. अपार्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश जहां पे कट ऑफ काफी अच्छी जाती है, देखो असम इज 4 मार्क्स, छत्तीसगढ़ इज 8 मार्क्स, दिल्ली थोड़ा सा कॉम्पिटिशन रहता है 23 मार्क्स, गुजरात इज 19 मार्क्स, जम्मू इज 2 मार्क्स, एनवीएस का अलग कोटा होता है नवो विद्यालयों का, झारखंड इज 18, कर्नाटक इज 16. सो अगेन 16, 17, 14, 2, इस तरह के तुम स्कोर्स देख रहे हो, इस तरह के स्कोर्स देख रहे हो. एंड इसके बारे में डोंट वरी अबाउट इट, इसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि हर स्टेट का कट ऑफ कितना जा रहा है. बट यू कैन सी दैट गाइस, यू कैन सी दैट 102 में से यू नीड टू स्कोर 17, समटाइम्स 4. उत्तराखंड से 4, इफ यू आर फ्रॉम उत्तराखंड तुम्हें 4 नंबर लेने हैं प्री आरएमओ को सर्टिफिकेट, प्री आरएमओ क्लियर करने के लिए. इफ यू आर फ्रॉम साउथ बिहार तुम्हें 7 नंबर लेने हैं प्री आरएमओ क्लियर करने के लिए. उड़ीसा 14 नंबर्स, पंजाब हरियाणा रीजन, पंजाब हरियाणा छत्तीसगढ़ चंडीगढ़ हिमाचल इज 1 रीजन, सो उसमें 18 नंबर लेने हैं. ऑलमोस्ट इतना ही रहता है. सो दिस इज जनरल ट्रेंड. एंड इस साल भी जो सर्टिफिकेट थे ऑलमोस्ट इसी नंबर पे मिले, ऑलमोस्ट. ठीक है, सो इट डजंट रियली चेंज मच. सो देयर आर सर्टेन स्टेट्स जहां पर तुम बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो. सो इवन इफ यू स्कोर 2 मार्क्स फ्रॉम सर्टेन स्टेट्स और 4 मार्क्स फॉर दैट मैटर, यू आर प्रीआरएमओ सर्टिफिकेट होल्डर गाइस. बस तुम्हें एग्जाम देना है, टेम्परामेंट बैठाना है और कोशिश करने की 2, 3, 4 क्वेश्चन कर लो 3 घंटों के अंदर, which I am very sure you'll be able to do. Got it? Yes. So that is it guys, that is it. And इस टेस्ट के बारे में अगर मैं बताऊं, सो टेस्ट जो है ना, that is also open. जो पहला टेस्ट है ना, that is not a fixed time test. The test will be open from 2 PM to Monday 2 PM. तो संडे को, इस संडे को एग्जाम होगा, खुलेगा. बिकॉज वी नो दैट वी आर अनाउंसिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी कमिटमेंट रहता है संडे को कि किसी ना किसी और जगह एसोसिएट होते हैं, या वेदांतु के अपने स्टूडेंट्स का अपने इंटरनल टेस्ट होते रहते हैं. ठीक है, नॉट वेदांतु ओलंपियाड बट ऑल्सो द अदर्स पेड स्टूडेंट्स. सो गाइज, दिस इज द फर्स्ट टेस्ट इज ओपन फॉर 24 आवर्स. तुम संडे को 2 बजे से लेके मंडे को 2 बजे तक उस लिंक पे जाके टेस्ट 3 घंटे का दे. तो कभी भी 3 घंटे का टाइम है. तुम्हें रात में अगर तुम्हें लगता है कि रात को तुम बहुत अच्छा दिमाग चलता है, अच्छा करते हो, रात को 2 से 5 बजे उठ के टेस्ट दो. राइट, सो परफॉर्म वेल, इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस. तो पहला टेस्ट इज ओनली फॉर प्राइड, तुम्हें सिर्फ शाबाशी मिलेगी. सब्सिक्वेंट टेस्ट, जब सब्सिक्वेंट टेस्ट होंगे तो ऑब्वियसली बात है कि यार इसमें इसलिए रखा है बिकॉज इसलिए प्राइज मनी नहीं है, बिकॉज जस्ट वी वांट टू गिव द एक्सपोजर कि भाई प्री आरएमओ होता क्या. हमें पता है कि बहुत सारे बच्चे चीटिंग कर सकते हैं इसके अंदर. ठीक है, तो अगर मैं चिंटू हूं तो मैं चिंटू को बोलूंगा भाई तू 2 बजे टेस्ट दे,
सारे के सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले, मुझे भेज दे, मैं सॉल्व करूंगा और रात को सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दूंगा. वी नो दैट दिस कैन हैपन, बट बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, डोंट डू दैट. क्या फायदा हो रहा है, सिर्फ शाबाशी तो मिल रही है, प्राइज मनी तो है नहीं. जब प्राइज मनी वाला टेस्ट होगा तो ऑब्वियसली इट विल बी ओपन फॉर 3 आवर्स ओनली. उसके लिए 3 घंटे ही होंगे, उसके लिए कोई चीटिंग चिंटू मिंटू नहीं होने वाला. सो अगेन वी नो दैट यू कैन चीट, so that is why for the first test it is only that feel of pre-RMO to each and every one of you, and you'll, अगर तुम सब लोग honest हो तो तुम्हें actually में एक अपना true rank भी पता लग जाएगा, because a lot of students give this test guys. So last year भी हमने AI PRMT लिया था and around 7,000 students guys, 7,000 students across India gave that test across 5 batches. Can you beat that? So again we are making this bigger. Last year तो शायद नहीं, last year also it was free I think. हमने 2 ही टेस्ट लिए थे, बट इस ईयर हमने सोचा कि पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज ही फ्री करेंगे. सो दिस इज ऑल इंडिया प्री आरएमओ मॉक टेस्ट सीरीज गाइस. दिस विल हैव 1 टेस्ट पर मंथ, हर महीने एक टेस्ट होगा, एंड दिस विल बी ओपन फॉर आवर इंटरनल. हम अपने इंटरनल बच्चों को भी ये दिलाएंगे एंड बाहर के बच्चे भी देंगे. वेदांतु के जो पेड स्टूडेंट्स है हु आर नॉट अ पार्ट ऑफ वेदांतु ओलंपियाड स्कूल वो भी ये देंगे. सो दिस इज ओपन फॉर एवरीवन. सो जितने ज़्यादा बच्चे देंगे तुम्हें एक्चुअली में उतना ज़्यादा कंपटीशन का फील आएगा और उतना ही ज़्यादा तुम्हें पता लगेगा दैट वेयर डू यू स्टैंड एट ऑल इंडिया लेवल, एंड इसकी अगेन डिटेल रिपोर्ट भी तुम्हें मिलेगी. गॉट इट गाइस? सो आई होप एवरीवन हैज़ रजिस्टर्ड here till now, and I want each and every one of you to do that guys. सब लोग फटाफट से रजिस्टर करें, एंड अगर अभी तक नहीं किया तो आई होप जल्दी कर देंगे. Got it? Yes. Super. So guys, that is it. And जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, let me open myself to your questions. तुम्हारे सवाल जवाबों को देखते हैं. कहाँ गए भाई तुम्हारे सवाल? यहाँ है. So guys, if you want to be a part of our batches which are launching very soon, तो ये है लिंक. So vdnt.in/vsmaths, यहाँ पर जाओगे. So it will ask you certain details. तुम्हारी कुछ डिटेल्स मांगेगा, ईमेल आईडी एंड स्टूडेंट्स नेम एंड पेरेंट्स नेम एंड ये ऑन, ये भर दो ताकि जैसे ही अपने बैचेस लॉन्च हो बच्चे, हमारी टीम तुम्हें डायरेक्टली कांटेक्ट कर दे एंड तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे दे. बिकॉज अगर ये नहीं भरोगे देन अगेन जब लॉन्च हो जाएंगे, तुमने बाई चांस मिस हो गया तुमसे ये भरना, तो 2-3 महीने बाद तुम फिर दोबारा जाग खुलेगी और बोलोगे कि सर आई अगेन मिस दैट. सो डोंट डू दैट. सो जस्ट फिल दैट फॉर्म. ओके गाइस, सो लेट मी ओपन माई सेल्फ टू द क्वेश्चंस. हाँ भाई. So yes, so what are the questions? How many questions will be there in wow test? बच्चे, it is the same pattern as pre-RMO. Pre-RMO जैसा पैटर्न ही रहेगा. तो उसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं, तो इसमें भी 30 क्वेश्चंस ही होंगे. ऑलराइट. How I don't have any academic achievements? Can I? Yes, Purnima, this time. So अभी हमने जो regular batches थे उसके अंदर तो again we were very apprehensive about not giving admission to each and every one of you. But अभी जो fresh batches launch हो रहे हैं, this will be open for each and every one. These batches will be paid. ठीक है, so that not everyone can enter, only the serious students can enter, but the fees will be very nominal. It will be 500 to 1000, maximum 1000. उसमें पूरा का पूरा कोर्स करवाएंगे. ठीक है, so there will be certain fees that is being decided on. अभी वो फाइनलाइज नहीं हुआ है, तो तब इसीलिए हम वो लॉन्च नहीं कर रहे. So we are taking certain permissions from the people there. And जैसे ही वो डिसाइड हो जाएगा, we'll be immediately launching that. So again, this will be a totally open for everyone. You can all open it, you can all register for that, even if you don't have any academic achievements. But if you're interested in, if you're a mathematics enthusiast and if you're interested in preparing for pre-RMO, the batch will be open for everyone. All right. और क्या भाई? I given board 155 marks, didn't receive any call. वरदान, प्लीज कनेक्ट मी ओवर टेलीग्राम पे मैंने अपना ईमेल, अपना टेलीग्राम आईडी बताया हुआ है. जस्ट कनेक्ट मी एंड मुझे बताओ, वहाँ पे डिटेल्स बताओ कि तुम्हारे कौन सा वोल्ट हुआ है. आई गेट इन टच विद द अथॉरिटीज. सर व्हेन इज प्री आरएमओ? अभिराम बच्चे, नो वन नोस, बट सितंबर 15 के बारे में बाद हमें पता लगेगा कि फॉर्मेट क्या होने वाला है और कब होगा. डोंट वरी अबाउट इट. विल आई ऑल्सो गिव, आई एम इन क्लास 7th. yes आर्यन, बिल्कुल. इवन इफ यू इन क्लास 7th एंड आर प्रिपेयरिंग फॉर प्री आरएमओ, तो क्या हुआ यार, तुम बस देना शुरू कर दो. इट विल ओनली लिफ्ट अप योर कॉन्फिडेंस. सो वेन एवर यू आर इन क्लास 8, तो तुम में ऑलरेडी एक्सपीरियंस होगा दैट हाउ टू डू क्वेश्चंस, सर्टेन क्वेश्चंस. गिव सम सजेशन ऑन हाउ टू मैनेज प्री आरएमओ प्रिपरेशन इन क्लास 11th.
सुजल बच्चे, दिस इज अ वेरी ट्रिकी क्वेश्चन. सो अगेन देखो, प्री आरएमओ एज फार एज क्लास 11th इज कंसर्न, अगर तुम बच्चे जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर प्रिपेयरिंग फॉर जेई, अगर अच्छा प्रिपरेशन करो, अच्छी जगह से प्रिपरेशन करो, मोस्ट लाइकली योर प्री आरएमओ यू विल क्लियर विदाउट एनी स्पेसिफिक प्रिपरेशन ऑफ प्री आरएमओ. बिकॉज प्री आरएमओ में ना एल्जेब्रा आता है, थोड़ी बहुत नंबर थ्योरी आती है, एंड कुछ और स्टेट लाइन सर्कल्स के क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें तुम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगा सकते हो. सो अगर तुम्हारा प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है जेई का, मोस्ट लाइकली यू विल बी एबल टू कवर ऑन योर ओन. अदरवाइज व्हाट यू कैन डू इज यू कैन ओनली गिव टेस्ट फॉर नाउ. सिर्फ टेस्ट दो. टेस्ट से तुम्हें बहुत इंफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा चीज़ें पता लगेंगी. बिकॉज टेस्ट सिर्फ टेस्ट नहीं है, उसके सोल्यूशन भी मिलेंगे तुम्हें. सो व्हेन यू सी द सोल्यूशंस, तो तुम्हें इनडायरेक्टली जेई की भी तैयारी हो रही है. बिकॉज प्री आरएमओ काफ़ी हद तक जेई से रिलेटेड है. आरएमओ इनमो इज क्वाइट डिफरेंट, बट प्री आरएमओ इज क्वाइट रिलेटेड टू जेई एज वेल. सो जस्ट गिव द टेस्ट फॉर नाउ एंड आई एम वेरी श्योर you'll be able to lift. सो अगर तुमने पहले से प्रिपरेशन नहीं किया हुआ, सो अभी प्री आरएमओ पर के पे फोकस करना इज नॉट अ गुड आइडिया. सो जस्ट गिव टेस्ट, सिर्फ टेस्ट दो. गॉट इट? आई एम इन क्लास 10th एंड WV board, how to start from pre-ARMO. So बच्चे, प्रिया first step, your first step should be complete your 9th and 10th syllabi. The second step, in fact I gave a video, मैंने ना इसी चैनल के ऊपर वेदांतु ओलंपियड स्कूल पे एक वीडियो दिया हुआ है, all about mathematics Olympiad preparation from zero to hero. तो वहाँ पर एक स्टेज दी हुई है कि what is the first stage. तो first stage is to cover class 8, 9, 10 syllabi from R.D. Sharma and NCERT. Second is क्लास 11th के सर्टेन टॉपिक्स. क्लास 11th के सर्टेन टॉपिक्स कौन से हैं? रिलेशंस, फंक्शंस, सीक्वेंस एंड सीरीज, परमुटेशन, कॉम्बिनेशंस. तो इस तरह के टॉपिक्स तुम्हें कवर करने हैं. थर्ड इज बुक्स. सो बेसिक बुक्स लाइक प्री कॉलेज मैथमेटिक्स एंड सो ऑन, इस तरह की बुक्स को पढ़ोगे तो अगर ये 3 स्टेजेस अगर कवर हो जाती हैं तुम्हारी, आई थिंक यू आर थ्रू. सो यू कैन सी दैट वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल ओनली, वेदांतु ओलंपियाड स्कूल, जहाँ पर मैंने मैथमेटिक्स ओलंपियाड के बारे में बताया फ्रॉम जीरो टू हीरो. तो नाम ही इसका जीरो टू हीरो है. You can see that video. Got it? Super. If I don't know what is the answer, but how will बच्चे, this pre-college mathematics का एक ही flaw है. The flaw is the solutions are not there. ठीक है? So you will have to connect with some teacher, either your school teacher or if you're associated with Vedantu Olympiad School, तो we take care of the doubts. I am from Andhra Pradesh. Are my chances of selecting? Yes, बच्चे, not less बच्चे, ऐसा नहीं है less है, but the competition in Andhra Pradesh and Telangana is quite good यार. बहुत अच्छा competition है. And you saw कि यहाँ पर जो मैंने starting में तुम्हें दिखाए थे, I showed you the marks, right? यहाँ देखो, आंध्र प्रदेश कहाँ गया? So these are okay. कहाँ गया ये? So Andhra Pradesh 38, and if we talk about Telangana, so Telangana is 28. So again the competition is quite tough in these southern states. So ऐसा नहीं है कि बच्चे की chances कम है, but yes, if you try well, तुम अच्छा करते हो, कोशिश करते लगे रहते हो, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती. So just try out things, just keep on working hard, and again you will succeed. Don't worry about it. And even if you don't succeed, guys, even if you near the cutoff, it is there in your head that you are better than most of the students who are qualifying from the other states. That itself will give you a lot of competition. So there is no harm in preparation for pre-RMO. Got it? All right. So I follow your Vedantu math classes and NCERT. Is it fine? Fine for what, Dipanchi? If you are a part of Vedantu Olympiad School batches and also doing the assignments, then I think it is sufficient. And pre-college mathematics अगर तुम साथ में करते रहो, particularly geometry, it will always help. What is the syllabi? Syllabi is बच्चे, as such there is no defined syllabus. Pre-RMO का, RMO का, NMO का, that is the good part. It is basic intermediate mathematics. अब उसमें क्या क्या आता है? There is number theory, there is geometry, there is algebra, quadratic equations, polynomials और ये सब कुछ. There is combinatorics, permutation combinations, और कुछ थोड़ा बहुत functions pre-RMO तक, but RMO INMO में functions भी काफ़ी अच्छे level का आता है. Inequalities. So these are basic topics and as such कोई defined syllabi नहीं है. If we are selected in camp, do we attend if we are in class 11 JEE preparation? Yes बच्चे देखो सुजल, if you get selected in OCSC camp, if you are part of Vedantu will make extra efforts. अलग से तुम्हारे ऊपर टीचर लगाएंगे
कि भाई जब तुम कैंप से वापस आओगे तुम्हारा सिलेबस हम कंप्लीट करवाएंगे, और दिस इज व्हाट वी डू, और यही करते हैं, ठीक है. सो अगेन वी विल नॉट अलाउ यू टू मिस द कैंप बिकॉज दैट विल बी अ सुपर एक्सपीरियंस एंड दैट इज अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस. यू विल गेट टू नो सो मच टॉपर्स, सो मेनी टॉपर्स अक्रॉस इंडिया गाइस. तो वो एक्सपीरियंस हम कभी भी मिस आउट करने नहीं देते. सो अगर तुम वेदांतु के स्टूडेंट हो और तुम्हें OCSE कैंप में जाने का मौका मिलता है, विल डेफिनेटली वर्क एंड पुट एक्स्ट्रा टीचर्स on you specifically for you, and so that your syllabus gets completed. All right, so how to manage school studies with बच्चे, this is बच्चे देखो, when I talk about NACGS and pre-RMO, so बहुत obviously बात है बच्चे that I'm assuming that you are good with mathematics of school level. So this is the assumption कि तुम school level पे बहुत अच्छा कर रहे हो. सिर्फ उन्हीं बच्चों को pre-RMO के लिए प्रिपेयर करना चाहिए. Simple सी बात है, as simple as that. So if you're good with mathematics, school level mathematics, then only you should prepare for pre-RMO. Otherwise, first focus on your school results, try to make them better, and then you should go for pre-RMO. ठीक है. So पहला stage हमेशा make sure that your school results, your school syllabi is complete and you're good with school syllabi. Only then you will have the confidence to clear exams like pre-RMO. Otherwise तुम दोनों जगह से हार मान लोगे यार, तुम दोनों जगह सफ़र करोगे. So don't do that. Got it? And बहुत बार ऐसा होता है कि एक बच्चा ना बहुत मैथमेटिक्स में पर्टिकुलरली बहुत अच्छा है, एंड बहुत सारे स्कूल्स ना इस चीज़ को रिकग्नाइज करते हैं दैट दे आर फ्रॉम वेरी गुड स्कूल्स, recognize these kind of competitive, these kind of Olympiads. So अगर student does well in pre-RMO और RMO for that matter, तो उनको ना कुछ special classes off दे देते हैं, या फिर they put in extra efforts on that students to cover all the other subjects also. So this happens in a lot of schools which I know, but कुछ schools obviously इसको इतना तवज्जो नहीं भी देते. So you need to follow up with the school. क्लास 7th में प्रिपरेशन कैसे करना है? सब पहला चीज़ को क्या करना है, 8th 9th 10th को कंप्लीट करना है. सो अभी के लिए वो करो, अगले साल हमारे पास ज्वाइन कर लेना. गॉट इट? ऑलराइट. सो नंबर ऑफ आवर्स फॉर प्री-आरएमओ क्लास 11 इन अ वीक. सुजल, नो फिक्स आवर्स गाइज, नो फिक्स आवर्स. यू नीड टू मेक श्योर, अगर तुम 11th में जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो तो सबसे पहले तुम मेक श्योर दैट योर जेई प्रिपरेशन इज गोइंग फाइन, एंड इफ इट इज गोइंग फाइन देन तुम वहां से कुछ टाइम निकाल के प्री-आरएमओ के लिए दे सकते हो. बट अगर जेई प्रिपरेशन ही अच्छा नहीं चल रहा तो डोंट कम टू प्री-आरएमओ, अभी मत जाओ. ऑल राइट. सो गाइज देखो, एंड यस एग्जैक्टली, इफ यू हैव ऑलरेडी क्लियर्ड प्री-आरएमओ वंस और आरएमओ वंस, और यू वर अ सर्टिफिकेट होल्डर्स लास्ट ईयर, और यू रोट इनमो लास्ट ईयर, तो तुम्हारे लिए डायरेक्ट एंट्री है. यू डोंट नीड टू गिव एनी अदर थिंग, यू जस्ट नीड टू मेल मी योर डिटेल्स. मैंने ईमेल आईडी ऑलरेडी बताया हुआ है, एंड तुम्हें बस अपने डिटेल्स भेजना है, और जैसे तुम डिटेल्स भेजोगे वी विल ऑटोमेटिकली गेट यू एनरोल्ड इनटू दोज बैचेस. ऑल राइट गाइज, सो माई पेरेंट्स आर प्रेशरिंग मी फॉर स्कोरिंग फुल. यस 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 बच्चे, एंड दे आर नॉट रॉन्ग. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है. ठीक है. सो बट आई एम श्योर कि तुम ये करके प्री-आरएमओ की तैयारी भी कर सकते हो. ठीक है. सो इफ यू आर प्रेशरिंग यू टू स्कोरिंग फुल, दैट मीन्स यू हैव अ पोटेंशियल. तुम्हारे पास पोटेंशियल तो है, तभी तुम फुल के लिए एम कर रहे हो. सो तुम अगर फुल के लिए एम कर रहे हो तो पोटेंशियल है. आई एम वेरी श्योर तुम इसके साथ साथ प्री-आरएमओ भी कर सकते हो. गॉट इट? शुड आई डू हॉल एंड नाइट फॉर अलजेब्रा? यस 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 अमित पटेल, हॉल एंड नाइट अलजेब्रा इज अ गुड बुक, एंड उससे सिर्फ प्री-आरएमओ का नहीं, आईआईटी का भी तैयारी हो जाएगा. सो वेरी गुड चॉइस. ऑल राइट गाइस, सो आई थिंक सारे क्वेश्चंस का आंसर मैं दे चुका हूं. आई एम इन क्लास 9th, हाउ कैन आई प्रिपेयर, हाउ कैन यू स्टार्ट? कृति, अगर तुमने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं किया हुआ तो फर्स्ट थिंग इज एनरोल फॉर दिस टेस्ट सीरीज विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है. सो इसके बारे में अभी मैंने बताया. सेकेंडली, वी आर लॉन्चिंग अ बैच वेरी सून, द डिटेल्स विल बी आउट वेरी सून. उस पर बैच को बिना सोचे समझे ज्वाइन कर लेना. ठीक है. सो ज्वाइन कर लोगे, तुम्हें कुछ आइडिया हो जाएगा दैट किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं, किस तरीके से सोचना है, एंड उससे 9th में हो सकता है कि तुम्हारा टेस्ट अच्छा जाए ना जाए, अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन, बट 10th क्लास में यू विल हैव अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस एंड वेरी गुड शॉट टू क्लियर प्री-आरएमओ एंड ऑल्सो आरएमओ. इस पाथफाइंडर और देखो चैलेंजेस एंड थ्रिल्स बच्चे, पास चैलेंजेस एंड थ्रिल्स ऑफ प्री कॉलेज मैथमेटिक्स इज अ बेसिक बुक जो मुझे लगता है कि सब लोगों को करनी चाहिए. पर्टिकुलरली इसका ज्योमेट्री सब लोगों को करना चाहिए. और ज्योमेट्री कैसे करना तुम लोगों ने,
एक अलग से कॉपी बनाओ प्री कॉलेज मैथमेटिक्स की, एक एक सोल्यूशन, एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखना है. इट शुड बी रिटन, बिकॉज दिस इज द थिंग अबाउट ज्योमेट्री दैट यू फाइंड अ सोल्यूशन, तुम्हें सोल्यूशन पता लग गया, फाइंड कर लिया, खुद निकाला चाहे, बट 2 दिन बाद ना वो सोल्यूशन तुम भूल जाते हो. सो दिस इज द वन थिंग अबाउट ज्योमेट्री. सो व्हाट यू नीड टू डू इज, स्पेशली ऑल द ज्योमेट्री क्वेश्चन, यू नीड टू पेन डाउन ऑल दी सोल्यूशंस. ज्योमेट्री इसका करना ही करना है, एंड बेसिक नंबर थ्योरी भी अगर हो जाए बहुत ही बढ़िया. एज फार एज पाथ फाइंडर इज कंसर्न, पाथ फाइंडर का बच्चे एक तो जूनियर है, एक सीनियर है. सो जूनियर इज अ वेरी गुड बुक बाय प्रशांत जैन सर. इट्स अ वेरी गुड बुक. अगर तुम वो कर सकते हो तो वो भी कर लो, बिकॉज उसके अंदर प्री ये है, क्या कहते हैं, प्री कॉलेज प्री RMO एंड NACGS एंड बेसिक KVPY का प्रिपरेशन होता है. सीनियर जो है ना बुक, दैट इज ऑन अ लिटिल हायर साइड, थोड़ा सा अच्छे लेवल पे है. इट इज अ टफर देन आई वुड से प्री कॉलेज मैथमेटिक्स. सो अगर प्री कॉलेज मैथमेटिक्स हो जाता है, देन यू कैन लुक एट सीनियर पाथफाइंडर. गॉट इट? सुपर. V-Pro student, no, bache. Sujal, again, these discussions are still going on, so we are still not sure, so I cannot comment on this कि V-Pro के लिए free होगा या नहीं होगा, because the discussions are still going on. So जैसे ही कुछ decide होता है तो I'll let you know. What do you think about AIME? I think highly about AIME, and AIME के बारे में बच्चे, it's a very good, ठीक है. So AIME के अगर तुम पेपर्स देखो, and these papers are available in site, ठीक है, ये बहुत readily available हैं. So AIME is basically the RMO equivalent of US, ठीक है. सो अगेन सुपर क्वेश्चन. सो अगर तुम अच्छा तैयारी करना चाहते हो प्री RMO को, सो AIME is something which we suggest to the students 1 month or 1.5 months बिफोर प्री RMO. सो अगेन सब कुछ कर लिया, सारा थ्योरी पढ़ लिया, सब कुछ आ गया, बच्चे को लगता है कि कॉन्फिडेंस आ रहा है, सो देन वी आस्क हिम टू और हर टू ट्राई AIME एग्जामिनेशन, प्रीवियस ईयर AIME एग्जामिनेशंस. ओके, सुपर. मैथमेटिक्स इन रफ, इज इट अ गुड हैबिट? पार्थ बच्चे, नॉट रिकमेंडेड, पर्टिकुलरली ज्योमेट्री. तो ज्योमेट्री को मुझे लगता है कि हमेशा तुम्हें फेयर सॉल्यूशंस बनाने चाहिए, बिकॉज यू कैन ऑलवेज कम बैक एंड हैव अ लुक एट दो सॉल्यूशंस. बट बाकी अगर अलजेब्रा रफ में कर भी रहे हो, बट अगर तुम्हारा अच्छा अंडरस्टैंडिंग है, इट इज ओके. बट ज्योमेट्री वाला पोर्शन एंड पर्टिकुलरली जो भी नया सीख रहे हो, कुछ भी नया सीख रहे हो, ज्योमेट्री तुम्हारे लिए नया होगा, नंबर थ्योरी तुम्हारे लिए नया होगा. ज्योमेट्री मतलब गुड लेवल ज्योमेट्री, नॉट दोज NCERT ज्योमेट्री. नंबर थ्योरी इज टोटली न्यू, जो तुम प्री RMO में सीखोगे. तो उसके लिए मुझे लगता है कि एक फेयर नोटबुक बनानी चाहिए जिसको तुम बार बार रिवाइज कर सको. ऑल व्हेन विल द न्यू बैचेस लॉन्च? वेरी सून पंचरन. वी आर ऑलरेडी सब कुछ फाइनलाइज हो चुका है, बट वही कॉस्ट वगैरह का थोड़ा सा पेंडिंग है. सो वेरी सून, मे बी वी विल बी अनाउंसिंग इन दिस वीक. द बैचेस विल नॉट स्टार्ट दिस वीक, बट अनाउंसमेंट इस हफ्ते या फिर अगले हफ्ते, मैक्सिमम अगले हफ्ते हो जाएगी. All right guys, so I think I've taken most of your doubts, and if you have any other doubts guys, अगर कोई भी और doubt है तुम्हारा, then you can always leave that doubt in the comment section. So as soon as the video gets over, not here, the video gets over, जैसे ही वीडियो खत्म होगा तो comments के अंदर अपना डाउट डाल देना, and I will definitely have a look at, or my team will have a look at those questions and will let you know. Guys, तो तुम्हें क्या करना है फटाफट से बता दूं मैं दोबारा से. तुम्हें ये करना है, यहां पर जाओगे, फटाफट से पहले तो लाइक करना है, ठीक है. तो फटाफट से लाइक करना है, फटाफट से एवरीवन प्लीज लाइक दिस. उसके बाद अगर तुम अपने नए बैचेस का पार्ट बनना चाहते हो जो हम लॉन्च करने वाले हैं, तुम्हें ये वाला फॉर्म फिल करना है. दिस फॉर्म यू नीड टू फिल, ठीक है, दिस फॉर्म यू नीड टू फिल. एंड थर्डली, अगर तुम जो हम टेस्ट सीरीज लॉन्च करने वाले हैं, विच इज स्टार्टिंग दिस संडे, द टेस्ट सीरीज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर तुम उसका पार्ट बनना चाहते हो तो यू नीड टू फिल and buy this. यहाँ पर जाओगे, you will need to log in, अपना लॉग इन करना पड़ेगा तुम्हें वेदांतु अकाउंट से. अगर नहीं बना हुआ तो फटाफट से बना लो, बहुत जल्दी बन जाता है. एंड यू नीड टू लॉग इन. तो लॉग इन करके बाय नाउ का ऑप्शन है, वहाँ पे ₹0 का तुम्हें मिल जाएगा. दैट्स मीन टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, एंड तुम्हें वहाँ पर संडे का टेस्ट देना है. सो दीज आर द 2 things दैट यू नीड टू डू. गॉट इट? एंड दैट इज इट गाइज. आई होप बाकी तो यहाँ पर बचे NTSC स्टेज 1, स्टेज 2 एंड प्री RMO का फ्री बुकलेट है, दिस यू कैन डाउनलोड. तो ये अभी अगर तुम फर्स्ट टाइम देख रहे हो, फर्स्ट टाइम प्रिपेयर कर रहे हो, तो अभी इट इज़ नॉट रिकमेंडेड. ये तो चलो देख लेना, बट इसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है. बट अगेन यू विल गेट टू नो द काइंड ऑफ क्वेश्चन जो तुम्हें सीखने हैं, ठीक है. सो ये बुकलेट का ये फायदा है. सो दैट इज इट गाइज, दैट इज इट अबाउट इट, एंड आई होप यू एंजॉयड. फटाफट से लाइक कर दो अगर लाइक नहीं किया, राइट. So if you have any other doubt apart from the ones that I have already answered,
जैसे ही खत्म होगा तो कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना बच्चे, आई विल और माई टीम विल आंसर द डाउट्स वेरी सून. So that is it guys, I hope you've enjoyed this and if there is any other, तो मैंने बता दिया कि क्वेरी को किस तरीके से हम हैंडल करेंगे एंड मैंने अपना टेलीग्राम आईडी और अपना ईमेल आईडी भी तुम्हें दे दिया हुआ है एंड तुम अगर डायरेक्टली कांटेक्ट मुझसे करना चाहते हो तो दिस इज हाउ यू कैन गेट इनटू टच. So alright guys, and I'll see you and I want to see each and every one of you to give that test. All the best guys, take care, God bless you.